So what is the problem with the force act, second or third principle of the Newtonian physics, right? We are discussing these things. Okay, so in 19th century, one of the scientists, that is the Oersted, if you heard this name, Oersted, have performed an experiment, and he established one, the relation between the magnetic field, magnetic effect, you can say, magnetic effect of this electric field, this electric field, or you can say electric current. Sorry, not field, I am saying just electric current. मतलब हुआ क्या, लेट से there is some current carrying conductor है यहाँ पर, and it is carrying some current in this direction. And when some magnetic needle, when some needle will, you know needle will fix, or you can say move near this wire, it get deflected. Yes or no? ये होगा ही होगा. Or when it got deflected, this phenomena is first, you know first, you can say, established by the Faraday. However, the equation in the mathematical form, the first person, Maxwell, he has written some equation, okay, in order to understand this type of problem. Okay, so electromagnetism type of concept is given. Okay, so the problem is this line is the line joining. इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स इन बिटवीन में काम कर रहा था, इधर और इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, लेकिन हुआ क्या कि परपेंडिकुलर और साइड वे में काम कर रहा था. ओके, द प्रॉब्लम इज, जस्ट आई एम राइटिंग सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. वी नो दैट, ओके, वी नो दैट द फोर्स act among two object will be act along line connecting to them, or line connecting them, or two object, right? Two objects. But in this case, किस कौन से केस में, when the line current conductor के बगल हमने एक needle लेके रखा, it will get deflected. In this case, the force act either the perpendicular or the sideways. इस पे फोर्स लग रहा था या परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा था, साइडवेज. जबकि होना क्या था, न्यूटोनियन फिजिक्स क्या कह रहा था, लाइन ऑफ एक्ट पे लगेगा, सेंटर ऑफ लाइन पे लगेगा, जबकि ऐसा नहीं हो रहा था. सो हाउ सच टाइप ऑफ द प्रॉब्लम, हाउ दिस इफेक्ट विल एक्सप्लेन. यहां पर आके फंस गए. इस तरह के फिनोमेना को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? विद द हेल्प ऑफ द न्यूटोनियन फिजिक्स वी आर अनेबल टू एक्सप्लेन सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम. Okay, so also you can say the further, if any test charge, if any of the test charge is moving around the, you can say, the needle, okay, the magnitude of the force will also depend on the velocity of this charge, right or not? Velocity of the charge पे भी dependent है, velocity of charge पे भी dependent है. You can say if any test charge, move around this needle, okay, किसी मैग्नेटिक नीडल के पास में आप लेट से उस चार्ज को मूव करते जाइए, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स depend not only on that charge but also the velocity of that, you can say, charge. Is it clear? Yes or no? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. So this type of problem, the above problem, you can say, the above experimental result, you can say, were not explained on the basis of, you can say, on the basis of
व्हाट, न्यूटोनियन फिजिक्स और न्यूटोनियन मैकेनिक्स। न्यूटोनियन मैकेनिक्स से कम इसको तो हम नहीं समझ सकते। देन तो क्या हुआ, देन माइकल फैराडे, Michael Faraday will come into the picture and he proposes something. So now, before going into the detail of the electric field, what is the experiment and how this field is going to defined, I'm just going to the brief. I'm just going to detail the brief of this man. I've already told Albert Einstein, अल्बर्ट आइंस्टाइन के वॉल पे, उनके ऑफिस के वॉल पे 3 महान साइंटिस्टों का पिक्चर था, जिसमें एक थे फराडे, राइट। तो फराडे साहब, दूसरे न्यूटन साहब और तीसरे मैक्सवेल साहब। सो दीज आर द यू नो द वेरी इफेक्टिव। आप ये समझ सकते हैं कि कितना इफेक्टिव रहे होंगे वो। और सबसे मजेदार की बात ये है, आप फराडे के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, क्यों, क्योंकि बहुत ये गजब के साइंटिस्ट हैं। हालांकि इन्होंने कभी पढ़ाई नहीं किया, है ना, इनको देखा जाएगा बाद में इन्होंने पढ़ाई किया, अर्ली एज में इन्होंने बहुत ही कम पढ़ाई किया। माइकल फराडे वाज बोर्न इन द कंट्री विलेज ऑफ सूरे, साउथ लंदन। ध्यान सुनना, है बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट, ये स्टोरी टाइप का है। हिज फादर वाज, इनके फादर साहब जो थे वो ब्लैक स्मिथ थे, ब्लैक स्मिथ, एंड हु हैड माइग्रेटेड फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड अर्लियर इन 1791 टू लुक सम वर्क। काम के तलाश में ये वहां से शिफ्ट होके आ गए यहाँ पर। इनकी माँ जो थी, हिज मदर वाज अ कंट्री वुमेन, अ ग्रेट काम एंड विजडम हु सपोर्टेड हर सन इमोशनली थ्रू अ डिफिकल्ट चाइल्डहुड। फराडे वाज वन ऑफ द 4 चिल्ड्रन। इनके पास खाने को भी बहुत ज्यादा एनफ नहीं था, एनफ टू ईट, सिंस देयर फादर वाज ऑफन इल। उनके पिताजी बीमार पड़ गए और इस तरह से उनको खाने को भी बहुत कम मिलता था। इस तरह से वो काम करते करते उन्होंने एक बार चर्च में वो पढ़ाई करते थे। 14 के एज में उन्होंने एक जगह ज्वाइन किया, क्योंकि उनके पिताजी का डेथ हो गया था। तो बुक बाइंडर के शॉप पे, बुक बाइंडर, जब बुक बाइंडर ही इज वर्किंग, ओके। तो जब वो बुक बाइंडर के शॉप पे काम करते तो उनके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स आर कमिंग फॉर फॉर द बाइंडिंग पर्पस। बट वो क्या करते थे, एट दैट इन ड्यूरिंग दैट पर पीरियड ही हैड गॉन थ्रू ऑल द बुक्स। वो पढ़ना चाहते थे, उसको पढ़ लेते थे। और एक बुक जो उनको बहुत ज्यादा प्रभावित किया, दैट बुक इज द इंसाइक्लोपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ, यू कैन से इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका। दिस इज द बुक, ओके। और इस बुक्स के बाद उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर, है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ऑल मेनी मेनी ऑफ द एक्सपेरिमेंट ही हैज डन। हुआ क्या कि सर हम्फ्री के एक बुक था जो उनको पढ़ने को मिला था। और बुक बाइंडर के पास, मैं एक स्टोरी छोटा सा बता रहा हूँ, बुक बाइंडर के पास जो उनके पास बुक बाइंडिंग करने के लिए देने आए थे, तो उसको पता था कि ये जो फराडे है ये थोड़ा पढ़ने में अच्छा है, तो उसने एक टिकट दिया कि तुम चलो, सर हम्फ्री का एक लेक्चर होने वाला है रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में, लंदन, और इसको आप जाके जरा सुनिए। जब वहां पर वो लेक्चर लेने गया, लेक्चर सुनने गया फराडे साहब, तो बहुत ज्यादा वहां पर उन्होंने प्रभावित हो गए। और उस दिन से उन्होंने काम 1821 में, देयर इज वन स्टोरी आई विल शेयर यू, है ना, on if you want to read the article I have this, है ना। सो इस तरीके से था, उन्होंने आप पढ़ लीजिएगा इसको, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। सो आई एम नॉट गोइंग द डिटेल ऑफ दैट, राइट। सो फर्दर what he has seen,
pattern of iron fillings around magnet. उन्होंने एक मैग्नेट लिया, मैग्नेट के ऊपर एक पेपर रखा, इस पेपर पे उसने कुछ आयरन फिलिंग्स बार बार उन्होंने थ्रो किया, और जब ये थ्रो करते तो देखते क्या कि ये एक पैटर्न में, बार बार एक पैटर्न में, ये एक पैटर्न की तरह उसमें आप देख रहे हैं कि बार बार लग जा रहा है। ये पैटर्न उनको बड़ा परेशान कर रहा था। वो कह रहे थे कि ये कुछ ना कुछ तो है, ये आपका एक तरह का कहा जाए तो फील्ड है, फील्ड है। और ये फील्ड क्यों आ रहा है? हालांकि उनको मैथमेटिक्स से बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि उन्होंने स्कूल गए नहीं थे, लेकिन उनको एक्सपेरिमेंट से बहुत ज़्यादा लगाव था, एक्सपेरिमेंट करके बता रहे थे। ठीक है, तो नेक्स्ट we will discuss in the next class the detail of